Good evening and welcome once again my 8th class. This time I'm going to give you a brief knowledge about the writs. I skipped the High Court's composition, its qualification and powers because they are almost the same. The slightly difference is there that the age of the judges, the retirement age of the judges. In Supreme Court, one must acquire the age of 65, but in High Court, one must acquire the age of 62. At the age of 62, the judges of the High Court get retired. As per your qualification is concerned, again, citizen, he or she should be citizen, and he should have worked as a judge in a court in India for not less than 10 years. तो कम से कम 10 साल तक कोई भी व्यक्ति जो जज बनना चाहता है हाई कोर्ट में, राइट, तो वो 10 साल तक किसी भी जुडिशियल ऑफिस में जज के पद पे ऊपर रहा हो. ही must have worked for at least 10 years. He should have worked as an advocate in the High Court or High Courts in India continuously for 10 years. तो या तो वो जज रहा हो या एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए. ही शुड बी renowned स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ लॉ. तो ये ज़रूरी है कि वो स्कॉलर हो. ही मस्ट हैव ample of knowledge about the judicial system of India, about the judiciary. These are the qualifications which are required to become a judge in the High Court. Powers almost similar हैं. Original jurisdiction में we have cases, both cases, that is criminal as well as the civil cases. Cases relating to fundamental rights, divorce, wills and laws relating to marriage can be brought directly. वही सिनारियो चलेगा कि जैसे वो डायरेक्टली लेके आ सकते हैं. तो cases like fundamental rights, divorce, wills and laws relating to marriage, that can be brought directly. That is the original jurisdiction. अपील करने की बात करो तो अपील आप दोनों केसेस में कर सकते हो, दैट इज सिविल एज वेल एज द criminal cases. Now let's talk about the main thing that I want to discuss with you, that is writ. Writ क्या है? The Supreme Court and High Court protect the fundamental rights from being eroded, abridged or infringed upon any person, group of person or a state itself. तो ऐसा कोई भी सिनारियो जहाँ पे कोई पर्सन या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, तो उस सिनारियो में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट्स हैं जिनके पास एक पावर रहती है टू इशू रिट्स. रिट इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर issued by a court to the state government or to the authorities which have done something against the fundamental right of a person. तो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया गया है, तो उस सिनारियो में जो कोर्ट है वो रिट इशू करती है. तो रिट क्या है? एक ऑफिशियल ऑर्डर है. ये अलग अलग हैं. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स. वी आर हैविंग हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेराई एंड मैंडेमस एंड क्वाब्रन. तो ये अलग अलग किस्म के रिट्स हैं जो इशू किए जाते हैं इन डिफरेंट सिनारियोज, राइट. Let's talk about first of all the habeas corpus. As per habeas corpus is concerned, it's a Latin word. ये medieval Latin word है जो use किया गया है judicial system में. It means to have a body, to present a body. By issuing such a writ, the court can get the body of any person released if it has been unlawfully captured by any person or a group of person or by the state. अब ये याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को अगर गैरकानूनी ढंग से अरेस्ट किया जाता है, और ये गैरकानूनी अरेस्ट कैसे हम लोग उसको कैसे हम एवेलुएट करेंगे कि ये गैरकानूनी है, इट इज़ इलीगल. इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, ही और शी शुड बी टेकन इन फ्रंट ऑफ द जज. उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है विद इन 24 आवर्स. तो अगर उस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश नहीं करते हैं, तो दैट अरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल अरेस्ट. इन दैट सिनारियो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल इशू अ रिट, दैट इज़ हेबियस कॉर्पस, एंड आस्क द गवर्नमेंट और द स्टेट पुलिस और द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ये ज़रूरी रहता है.
तो ये है रिट जिसे कहा जाता है हेबियस कार्पस। द रिट इज़ दस इज़ ग्रेट सेफ गार्ड ऑफ पर्सनल फ्रीडम ऑफ अ सिटीज़न। तो ये आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव इट। नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन बेसिकली एक प्रोहिबिट करना या किसी को रोकना, ये मतलब इसका यही रहता है। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन किसके लिए है, लेट्स सी। सच टाइप ऑफ रिट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट में हमारे पास हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट writ can only be issued by the Supreme Court and High Court. Subordinate court is not having any authority to issue writs. तो प्रोहिबिशन में ये एक ऑर्डर है किसके लिए, हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट में, वो लोअर कोर्ट में सबॉर्डिनेट कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए। टू इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन केस विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ हायर कोर्ट might be contemplating to do in excess of its jurisdiction. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, jurisdiction का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का जो कार्य क्षेत्र रहेगा, वो कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, वो कहाँ तक उसकी जो पावर है वो काम करेगी, दैट इज़ jurisdiction. अगर हायर कोर्ट को लगता है कि जो निचले वाला कोर्ट है, मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट इज़ वर्किंग और डीलिंग विद अ केस विच इज़ बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक रिट इशू करेगी इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट करना होता है, रोकना प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट केस। ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो केस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो उस केस की सुनवाई को वहाँ पे रोक दिया जाएगा बाय इशूइंग अ रिट विच इज़ कॉल्ड प्रोहिबिशन. Next is certiorari, which is again a Latin word. This writ is issued by the superior court to a quasi-judicial or judicial authorities in order to quash, ये word use किया गया है आपकी बुक में, quash which means reject its order or decision. Basically यहाँ पे क्या होता है, जैसे prohibition में तो हम लोग रोक रहे हैं proceedings को, right? लेकिन यहाँ पे अगर जजमेंट दे दी गई, बाय द लोअर कोर्ट जजमेंट वाज गिवन, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी या सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, तो उस सिनारियो में उस जजमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है बाय द हायर कोर्ट. अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ऐसा कर रहा है तो हाई कोर्ट रिट इशू करेगा उस जजमेंट को खारिज करने के लिए. अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगा जिसे कहा जाता है certiorari, एंड which is given with the purpose to reject the judgment given by the lower court. This is the meaning of that thing. Prohibition में हम लोग रोक रहे हैं प्रोसीडिंग्स, केस की प्रोसीडिंग्स को हम रोक रहे हैं, लेकिन certiorari में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जजमेंट दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जजमेंट को हमें रिजेक्ट करना था. फोर्थ वन इज़ मैंडमस. अब मैंडमस में क्या है, वी कमांड. अब यहाँ पे कौन कमांड कर रहा है, द रिट इज़ दस अ सॉर्ट ऑफ कमांड फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट, राइट. तो अगेन सुपीरियर कोर्ट इज़ कमांडिंग टू द लोअर कोर्ट, subordinate court or an administrative authority in case they refuse to exercise their jurisdiction and fail to perform their duty. ये थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा प्रोहिबिशन को लेकर. यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए ये रिट इशू की जाती है अगर वो अपनी ज्यूरिस्डिक्शन या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, या उनको मना किया गया था फिर भी वो कर रहे हैं कोई भी ऐसा काम जो उनको, या कोई भी ऐसा केस है वो डील कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था. उस सिनारियो में ये रिट इशू की जाती है जिसमें कहा जाता है वी कमांड. अब ये वी कौन है, वी इज़ द हायर कोर्ट. वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो हाई कोर्ट हो सकता है, विच इज़ कमांडिंग, ऑर्डर दे रहा है लोअर कोर्ट को कि आप जो ये काम कर रहे हो, विच हैज़ बीन आस्क यू टू स्टॉप इट, तो आप ये काम को आपको इस काम को रोक देना था लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो हम अब हुक्म दे रहे हैं कि भाई ये रुक जाइए. नेक्स्ट इज़ द कोअव्रंतो. कोअव्रंतो होता है, अगेन इट्स अ लैटिन वर्ड, राइट. So most of them are the Latin words which are used here. Such a type of writ is issued by a court
अब ये जो रिट है ये पब्लिक सर्वेंट को इशू की जाती है टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ हिज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस एंड टू आउस्ट हिम if his claim is not well founded. Whosoever public servant is there and he has acquired any office, तो अगर कहीं पे लगता है कि द पर्सन इज़ नॉट लीगली शुड बी देयर, उसके पास कानूनी मान्यता नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने की, तो उस सिनारियो में जो कोर्ट है वो एक रिट इशू करेगा क्वा वरंतो कि आप किस अधिकार से इस सीट के ऊपर हो, अपनी जो कानूनी मान्यता है उसे प्रूव कीजिए, राइट। एंड मोस्टली यहाँ पे होता है कि उसे पद से उतारा जाता है, टू आउस्ट हिम इफ़ हिज क्लेम वॉज नॉट फाउंडेड। अगर ऐसा वो करता है कि जो उसने क्लेम किया था कि आई एम कैपेबल और आई एम हैविंग दिस लीगल अथॉरिटी टू एक्वायर दिस पोस्ट, अगर तो वो ऐसा साबित कर देता दैन इट इज़ फाइन, लेकिन वो अगर साबित नहीं कर पाता है तो उसे पद से उतारा जाता है। देन दिस रिट प्रिवेंट्स एन अनलॉफुल क्लेमेंट फ्रॉम होल्डिंग अ सुपीरियर पब्लिक ऑफिस। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी ढंग से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड अगर किया जाता है तो उस सिनारियो में ये रिट इशू की जाती है। तो देर आर 5 डिफरेंट रिट्स। वन इज़ हेबियस कार्पस, सेकेंड इज़ प्रोहिबिशन, सर्टियोरेराई, मैंडमस एंड क्वा वरंतो। दीज आर द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट टू डिफरेंट अथॉरिटीज़, राइट। तो इन्हें कहा जाता है ऑफिशियल ऑर्डर इन ऑर्डर टू सिक्योर, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर कहीं पे गड़बड़ हो गई है तो ये इट्स अ काइंड ऑफ मेडिसिन टू इम्प्रूव दोज मिस्टेक्स। दैट्स इट।